بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا سوچیں، ایک ایسی قوم جو اپنا سب کچھ کھو چکی ہے، پھر بھی ان کا ایمان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہے۔ سوال یہ ہے کہ فلسطینی اتنے مضبوط کیسے ہیں؟ ان کی آواز آپ کو بار بار سنائی دیتی ہے۔ روزانہ کئی گھنٹے یہ سب سننے کے باوجود آپ کیسے اتنے ثابت قدم رہتے ہیں؟ اللہ وہ اکبر۔ ایمان نہیں ہے جو عام اوقات میں آدھی رات کو یہ چیک کرنے کے لیے اٹھتی ہے کہ آیا آپ کے بچے کو ٹھنڈ لگ رہی ہے، مگر جب آپ کا وہ بچہ بچھڑ جاتا ہے تو آپ اتنی مضبوطی اور ثابت قدمی کہاں سے لاتے ہیں؟ ماشاءاللہ، بہت زبردست۔ لگ بھگ انسان کیا آپ کا بھائی بہن، آپ کا شریک حیات، آپ کی ماں آپ کا بھائی نہیں ہے؟ آپ اتنا مستحکم ایمان اور اطاعت کا جذبہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ سوشل میڈیا پر ہزاروں لوگ ان سوالوں کے جواب ڈھونڈ رہے ہیں، کیونکہ فلسطین میں خدا کی اطاعت کی ایسی حیرت انگیز مثالیں نظر آ رہی ہیں جنہوں نے ساری دنیا کو ہلا دیا ہے۔ ان حالات کا 1% سہنا بھی ہمیں ناقابل برداشت لگتا ہے، مگر وہ لوگ ان حالات میں بھی بالکل خوفزدہ نہیں ہیں۔ اس ہمت و بہادری کو ہم پوری طرح نہیں سمجھ سکتے۔ اپنے ساتھ اتنا کچھ ہونے کے باوجود فلسطینی اپنے گھر چھوڑ کر نہیں جا رہے۔ وہ باہر سڑکوں پر نکلنے، اپنی عبادت گاہوں میں جانے سے نہیں کتراتے، حالانکہ کسی بھی لمحے ان پر بم گر سکتا ہے جو انہیں ہلاک یا معذور کر سکتا ہے، پھر بھی وہ ثابت قدم ہے۔ آخر وہ ان ناممکن حالات میں بھی پرسکون اور بے خوف کیسے رہ لیتے ہیں؟ کیا چیز انہیں اس سطح پر لائی ہے؟ اس کا جواب مختصر مگر بہت معنی خیز ہے۔ ان کا ایمان، وہ ایک ایسے دین کو مانتے ہیں جہاں اللہ کے راستے میں جان دینے والوں کے لیے کوئی موت نہیں۔ ہم انہیں مردہ نہیں کہہ سکتے، وہ شہید ہے، اور شہادت آخرت کی زندگی میں انہیں حاصل ہونے والا بلند ترین درجہ ہے۔ یہ موت اس محدود اور عارضی دنیا سے آزادی کا پیغام اور ہمیشہ کی زندگی میں اپنے رب سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ یہ گویا ہمیشہ کی جنت میں جانے کا پاسپورٹ ہے۔ ہم سوشل میڈیا پر فلسطین کے انتہائی اثر انگیز اور جذباتی مناظر دیکھتے ہیں۔ ہمارا ایک بھائی کہتا ہے، الحمدللہ میری بیوی شہید ہو گئی، اور یہ بات کہتے ہوئے آپ اس کا ایمان دیکھ سکتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ صرف اس کی بیوی نہیں بلکہ اس کے 2 بچے بھی شہید ہو چکے ہیں، اور ابھی وہ یہ بتا ہی رہا تھا کہ اسے ایک اور قیامت خیز خبر ملتی ہے، اس کا ایک اور بچہ بھی شہید ہو گیا، مگر اس کے اطمینان اور سکون میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ظاہر ہے وہ اداس تو تھا، مگر اس نے خدا کے لیے کوئی برے الفاظ نہیں نکالے۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ وہ جس شخصیت کو فالو کرتا ہے اور انہیں اپنا رول ماڈل بناتا ہے، وہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 200 سال پہلے انہیں بھی ایسے ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ صدموں سے گزرنا پڑا تھا۔ جب آپ کا بیٹا ابراہیم صرف 1.5 سال کی عمر میں آپ کے ہاتھوں میں وفات پا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور دل غم سے نڈھال ہے، مگر زبان سے ہم وہی کہیں گے جو ہمارے رب کو پسند ہے۔ اے ابراہیم، ہم تمہاری جدائی سے غمگین ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی آپ کے 7 میں سے 6 بچے انتقال کر گئے تھے، لیکن غم اور صدمے کے ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل اپنی اطاعت میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا۔ اسی لیے ان کی زندگی کو نمونہ بنانے والے لوگ ایسا ہی طرز عمل دکھاتے ہیں۔ اللہ ان کے دلوں میں بے مثال اطمینان اور سکون اتار دیتا ہے جو خود انسان کے لیے اپنانا ممکن نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، مگر ان واقعات کو دیکھ کر ہم سب کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں۔ ہمارے دل انصاف کو پکار رہے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کیا یہی انصاف ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے؟ ظالم اپنے ظلم کے ساتھ آرام دہ موت مرتا ہے، اور مظلوم اس دنیا سے درد اور اذیت کے ساتھ جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس دنیا میں ایسی کوئی سزا ہی نہیں جو ان کے اتنے بڑے جرائم کے برابر ہو۔ ذرا سوچیں کہ کون سی دنیاوی سزا اسرائیلی فوجیوں کے جرم کے برابر ہو سکتی ہے، جو ہزاروں معصوم کو اذیت دیتے ہیں اور قتل کرتے ہیں۔ چھوٹے جرم کی سزا چھوٹی عدالتوں میں دی جاتی ہے، مگر بڑے جرم کا فیصلہ بڑی عدالتوں میں ہوتا ہے۔ لہٰذا ظالموں کا ٹرائل ایک بڑی عدالت میں ہوگا، قیامت کے دن ہوگا، جہاں ان کی سزا بڑھتی ہوئی آگ ہوگی۔ ذرا سوچے تو صحیح، خدا تو ایک چونٹی کی بھوک کو بھی جانتا ہے اور وہ اسے خوراک مہیا کرتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ اپنی سب سے اہم مخلوق انسانوں کی ضروریات کو پورا نہیں کرے گا، خصوصاً وہ انسان جو اس کے فرما بردار ہیں جیسے کہ فلسطین کے لوگ؟ کیا یہ ممکن ہے کہ آخرت کی بڑی عدالت میں وہ مسلموں کو ظالموں سے حقوق نہیں دل پائے گا؟ ظاہر ہے کہ یہ ممکن نہیں۔ تو وہ فلسطینی لڑکا جس کا دل اپنے پیاروں کے بچھڑنے پر زخمی ہے، یقینی طور پر جانتا ہے کہ وہ ظالموں سے اپنے حقوق لے گا اور مجرموں کو اپنے جرائم کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ وہ فلسطینی باپ یاد ہے جس کا خاندان ختم ہو گیا تھا، وہ جانتا ہے کہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کی خوشی کے ساتھ وہ ان سے دوبارہ مل جائے گا، اور پھر وہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ یہ لوگ کسی خیالی بات پر ایمان نہیں رکھتے، یہ ایک ایسی طاقتور سچائی ہے جو ان کے دلوں میں، ان کی روحوں میں، ان کے
ज़हनों में, उनके पूरे वजूद में समा गई है। अगर उनका ईमान इतना पक्का ना होता तो क्या हमें इसका ऐसा असर दिखाई देता? इस चीज़ का मुशाहिदा हम इस ज़िंदगी में हमेशा करते हैं। भूख हमारी ज़रूरत है और इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हर किस्म के खाने बनाए गए हैं। हम हर रोज़ थकते हैं और दोबारा फ्रेश होना चाहते हैं, लिहाजा नींद पैदा की गई। खालिक कायनात ने हमें फैमिलीज, फ्रेंड्स, शोहर, बीवियाँ दी ताकि मोहब्बत करने और मोहब्बत पाने की ज़रूरत पूरी हो। छोटी से लेकर बड़ी बेशुमार चीज़ें पैदा की गई जो एक दूसरे के बगैर अधूरी है। ये सब देखकर हमें यकीन हो जाता है कि जो खुदा हमारी छोटी से छोटी ज़रूरत का ख्याल रखता है वो हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत को भी पूरा करेगा, यानी हमेशा की ज़िंदगी और मुकम्मल इंसाफ की ज़रूरत को। ज़रा सोचें, अगर उसने हमें ये ज़रूरियात, ये ख्वाहिशात दी हैं तो वो यकीनन उन्हें पूरा भी करना चाहता है। अगर वो हमारी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करता है तो हमारी सबसे बड़ी ज़रूरतों को भी पूरा करेगा। अजीम स्कॉलर बदिउज़्ज़मान सैयद नूरसी आखिरत के बारे में कहते हैं, क्या ये मुमकिन है कि वो एटम को देख ले मगर सूरज को ना देख सके? वो मच्छर की भनभनाहट को सुन ले मगर बादलों की गरज को ना सुने? नहीं, 1000 दफ़ा नहीं, ये नामुमकिन है। लिहाजा वो फ़लस्तीनियों की अजीम तरीन ख्वाहिश को ज़रूर पूरा करेगा। वो उस पर दिलो जान से फिदा है। अल्लाह उन्हें उनके प्यारों के साथ दोबारा इकट्ठा करेगा। कभी जुदा ना होने के लिए उन्हें जन्नत अता करेगा जहाँ कोई परेशानी या तकलीफ नहीं होगी। उनका ईमान बहुत मजबूत है। उनका ईमान ये नहीं है कि मेरे गुनाहों के बदले कोई और सूली चढ़ गया, लिहाजा हम सबको माफ़ी मिल चुकी है, इसलिए मैं जन्नत में ज़रूर जाऊँगा चाहे इस दुनिया में मैं कुछ भी करता रहूँ। और ना ही उन्हें यकीन है कि मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊँगा क्योंकि मेरा ताल्लुक इस नस्ल से है। नहीं, वो बिल्कुल इंसाफ पसंद खुदा पर यकीन रखते हैं। उनका ईमान फर्जी बातों या मनपसंद सोचों पर मबनी नहीं है जैसा कि इस्लाम सिखाता है। उनका ईमान ये है कि तमाम इंसान अपने हर अच्छे और बुरे अमल के जिम्मेदार और जवाबदेह होंगे, इसीलिए वो अपनी बातों, अपने कामों और अपने रवैयों के हवाले से बहुत मुहतात होते हैं। ये तमाम चीज़ें कुरान में अल्लाह के बताए हुए असूलों और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक होनी चाहिए। अल्लाह ताला सूरा अज़्ज़लज़ला में फरमाता है, फ़मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। चनाचे जिसने ज़र्रा बराबर कोई अच्छाई की होगी वो उसे देखेगा और जिसने ज़र्रा बराबर कोई बुराई की होगी वो उसे देखेगा। लिहाजा फ़लस्तीनियों का आखिरत की ज़िंदगी पर ये खालिस और पक्का ईमान है और यही चीज़ उन्हें इतना मजबूत बनाती है। वो ज़िंदगी और मौत की सच्चाई को समझ चुके हैं। वो जानते हैं कि वो किसके रास्ते में अपनी जानें दे रहे हैं। वो अल्लाह ताला के सामने शहादत की आला कदर कीमत से वाकिफ़ है। उन्हें मालूम है कि आखिरत के मुकाबले में ये दुनियावी ज़िंदगी कितनी बेकीमत है। हो सकता है आपको वो लोग मदद के मुहताज नजर आए मगर उनकी नज़र में अगर वाकई कोई मदद का मुहताज है तो वो आप हैं, हम हैं। उन्होंने तो हमेशा की ज़िंदगी के बदले इस आर्ज़ी ज़िंदगी का सौदा कर लिया, जबकि दूसरी तरफ हमने इस महदूद ज़िंदगी के बदले हमेशा की ज़िंदगी को कुर्बान कर दिया है। हमें नहीं मालूम कि हम आखिरत के इम्तिहान में पास होंगे या फिर हम बड़े ख़तरे में हैं। हम में से कुछ लोग नमाज तक नहीं पढ़ते, हम में से कुछ बिल्कुल बेपरवाह हैं। हम वो आराम और पैसा नहीं खोना चाहते जिसके आदी हो चुके हैं। बाज़ औक़ात यही इस बात की वजह बनती है कि हम जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ खड़े नहीं होते। दूसरी तरफ गज़ा में हमारे भाई और बहनें दुनिया की सबसे बड़ी आज़ाद जेल में, आज़ाद हिरासत कैंप में रहते हैं, जिनकी बुनियादी ज़रूरियात भी पूरी नहीं होती, मगर इसके बावजूद वो अपने ईमान से, अपनी हिम्मत से और अपनी कनात से हमें शर्म दिलाते हैं। अब हमें ज़रूर ये पूछना चाहिए, हकीकत में कौन आज़ाद है? गज़ा की आज़ाद जेल में वो लोग या फिर हम? हकीकत में किसे मदद की ज़रूरत है, उन्हें या हमें? जो अल्लाह और उसके हुक्म को मानता है वो खुश नसीब है, चाहे वो किसी कैद खाने में और जो उसे बुला बैठे वो बेचारा मुसीबत ज़दा और कैदी है, चाहे बड़े बड़े मोहल्लात में हो। बदिउज़्ज़मान सैयद नूरसी का एक मशहूर कौल है, उन्होंने फरमाया, ईमान रोशनी भी है और ताकत भी। जी हाँ, जिसके पास सच्चा ईमान हो वो सारी कायनात को चैलेंज कर सकता है और अपने ईमान की ताकत के जरिए वाक़यात के दबाव से महफूज रह सकता है। क्या हम इसी बात की सच्चाई को नहीं देख रहे? फ़लस्तीन में हमारे भाई और बहनें मौत को, कायनात को चैलेंज कर रहे हैं। उसकी तकलीफ हालात में वो दुनिया के सामने मज़ाहमत और खुदा की रज़ा पर कायम रहने की गैर मामूली मिसाल पेश कर रहे हैं। चीज़ें बिल्कुल मुख्तलिफ सिर्फ में जाना शुरू हो गई हैं। गैर मुस्लिम होने के बावजूद बहुत से लोग इस्लाम और कुरान पर रिसर्च करने लगे हैं और पूछ रहे हैं ये किस किस्म का ईमान है। सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत से गैर मुस्लिम हैं जो लोगों के ईमान की ताकत से हैरान होकर कुरान पढ़ना शुरू कर चुके हैं। हमें लोग ये कहते हुए नजर आते हैं, मैंने कुरान का ऑर्डर दे दिया है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं इस्लाम हरगिज़ ऐसा मजहब नहीं है जैसे
जैसा मैं सोचता था। मीडिया ने हमसे झूठ बोला और वो इस्लाम के करीब आ रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं जो मुसलमान हो चुके हैं। हम देख सकते हैं कि चीजें कैसे बदल रही हैं और मुझे यकीन है कि हम इस्लाम की हमायत में मजीद बहुत से कमेंट्स पढ़ेंगे और बहुत से वाक़यात सुनेंगे। मगर दुनिया के और लोगों को भी ये सच्चाइयाँ देखनी चाहिए और हमें भी अपनी जिंदगी में अपने तौर तरीकों में इस्लाम की झलक दिखानी होगी। बदील ज़मान फरमाते हैं, अगर हम हकीकी इस्लाम, ईमानदारी और सच्चाई को अपना लें तो गैर मुस्लिम बहुत बड़ी तादाद में इस्लाम में दाखिल होंगे। और मैं आखिर में तुम्हें ललकारता हूँ, ऐ जालिम इसराइली हुकूमत और इसके मकसद की हमायत करने वालों, मुझे नहीं मालूम तुम क्या सोच कर ये कर रहे हो या तुम्हारी ज़हनियत क्या है, मगर मुझे ये जरूर मालूम है अगर तुम यही कुछ करते रहे तो तुम्हारा हर अमल जहन्नुम में तुम्हारी सजा को ही बढ़ाने का सबब बनेगा। इस अमल से जो वाहिद चीज तुम्हें मिल रही है वो तुम्हारी सोच के बिल्कुल उलट है। तुम मुसलमानों को जन्नत में ले जाने का, कुछ लोगों को इस्लाम से मुतासिर करने का और उन्हें मुसलमान बनने में मदद देने का जरिया बन रहे हो और ऐसे लोगों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। तुम जितनी ज्यादा कोशिश करोगे उतना ही दलदल में धंसते चले जाओगे। तुम्हारे ख्याल में तुम ज़हनियत की खिदमत कर रहे हो मगर अनजाने में तुम इस्लाम की खिदमत कर रहे हो। ये बात कभी मत भूलना, जिस दिन मजलूम बदला लेता है वो जालिम के जुल्म किए जाने वाले दिन से ज्यादा खौफनाक होता है। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें।